Today our topic is principles of growth and development. Before starting growth and development, we should know about where it starts. Human life starts from a single fertilized cell, and this cell is under constant interaction with the environment in mother's womb. This interaction leads to growth and development. Now, what is growth? Increase in size, increase in structure. So, if we talk about growth, it means quantitative changes like height, weight increases. It stops when we are fully mature. If we talk about development, development is a multifaceted process. It includes overall changes in an individual. We acquire different skills, different functions, our body parts functions differently. That is qualitative changes like emotional development, intellectual abilities develops. If we talk about examples of a growth, increase in height, increase in weight, increase in bodily proportions, there are changes in bodily proportions, this is growth. And if we talk about development, not only growth but development, it means if we talk about our hands, that not only grow, they also develop. Our abilities develops, our skills develop. For example, development of a bud into a flower, it is the example of development. It means our whole body parts functions properly, proper functioning of an individual, that is called development. If we talk about difference between growth and development, growth is no doubt physical. Development includes physical, cognitive, emotional, aesthetic, and social progress. Motor development of an infant progresses from random waving of the arms and legs to purposeful reaching, grasping, creeping, and walking. कहने का मतलब एक इन्फेंट छोटा सा बच्चा जिसने जन्म लिया है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होती जा रही है उसकी फिज़िकल, कोग्निटिव, इमोशनल, एस्थेटिक, सोशल, ऑल पार्ट्स. पहले उसकी जो मूवमेंट थी, बड़े वाले जो बड़ी मसल्स थी उनकी मूवमेंट थी, आर्म्स की, लेग्स की, और कुछ पकड़ नहीं पाता था. धीरे धीरे वो चीज़ों को ग्रास्प कर रहा है, पकड़ पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, वॉक कर पा रहा है, क्रॉल कर रहा है. दिस इज़ व्हाट all parts, all body functions now properly. The development of cognitive process move towards the development of the ability to conceptualize, comprehend and think in abstract terms. पहले जो है कंक्रीट चीज़ों से सीखता है बच्चा, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, MAT मैट, है ना. साथ साथ हम चीज़ें भी दिखा रहे हैं बच्चों को. दीज आर कंक्रीट थिंग. बट धीरे धीरे जैसे 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 ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, कोग्निटिव प्रोसेस जो हो रहा है, नॉलेज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो रही है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो रही है, तो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी समझ आते हैं. व्हाट इज़ ऑनेस्टी? चाइल्ड लर्न्स, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज़ ऑनेस्टी, व्हाट इज़ ट्रूथ, है ना. इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने शुरू कर देते हैं. Now I'm going towards our main topic, that is principles of growth and development. First principle is growth or learning depends upon maturation. जब तक हम mature नहीं हैं किसी काम को करने के लिए, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये है कि हर काम की एक एज होती है. जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको एग्जांपल देती हूँ. लाइक जब तक बच्चा वो क्रॉल करना नहीं सीखता, क्रॉलिंग नहीं आती, तब उसके अगला स्टेप क्या है? स्टैंडिंग का. स्टैंडिंग भी तभी आएगी, खड़े होना का कैसे आएगा? जब वो क्रॉलिंग करना सीखेगा. और उसके बाद खड़े होने के बाद चलना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, छोटे छोटे स्टेप्स के बाद धीरे 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 उसको चलना शुरू. फास्ट लर्निंग, फास्ट जो है उसकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, देन रनिंग स्टार्ट हो जाती है. सो ये कैसे पॉसिबल है? जब तक हम मैच्योर नहीं हैं, जब तक बॉडी जो है मैच्योर नहीं है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है. सो ग्रोथ और लर्निंग डिपेंड्स अपॉन मैचुरेशन. यहाँ पे मैचुरेशन क्या है? डेवलपमेंट है कि हमारा ये वो पार्ट्स जो हैं डेवलप नहीं हैं. बच्चा नया जन्म लेता है, एकदम से बोलना तो नहीं शुरू कर देता. कब बोलता है? जब तक उसके वोकल कॉर्ड्स डेवलप नहीं हो जाते.
सो कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में बोलूँगी, अनटिल और अनलेस वी आर नॉट मैच्योर वी कांट लर्न। ऐसे ही लर्निंग है, हम तभी लर्न करते हैं कुछ जब तक हमारी वो, अगर हम कोग्निटिव की बात करें, कॉम्प्रीहेंशन डेवलप नहीं होती। सो सेकेंड प्रिंसिपल इज ग्रोथ इज़ मोर रैपिड इन अर्ली ईयर्स, नो डाउट। फर्स्ट 5 ईयर्स जो हैं हमारी लर्निंग के बहुत रैपिड हैं, लर्निंग बहुत फास्ट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत 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 फास्ट होती है इस एज में। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी और चेंज। ग्रोथ अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड इट कॉन्टिन्यूज टिल डेथ, मीन्स इट्स ए प्रोसेस ऑफ वॉर्म टू टॉम, इट नेवर सीजेस, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो हमारी लाइफ जो है, इट स्टार्टेड फ्रॉम ए टाइनी सेल एंड इट डेवलप्स अवर बॉडी, माइंड एंड अदर आस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ, लैंग्वेज स्किल इट बिल्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम। फर्स्टली चाइल्ड क्या करता है, बैबलिंग साउंड्स देता है, लेटर ऑन उसकी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है। एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल्स डेवलप होते जाते हैं। सो इट टेक्स टाइम, इट्स ए प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी और चेंज। ये चेंज धीरे धीरे आती है जैसे जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक सेफलोकोडल की, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल की। सबसे पहले ये सेफलोकोडल प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, फ्रॉम हेड टू टो, मीन्स टॉप टू बॉटम। पहले हमारा हेड डेवलप होता है, लेटर ऑन हमारे टोज डेवलप होते हैं। मतलब पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 बॉटम पे आते जाते हैं, हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखते जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो इन्फेंट गेन्स कंट्रोल ओवर हेड एंड आर्म्स बिफोर लेग्स। कहने का मतलब ये है, मैं एक और एग्जांपल से क्लियर करूँगी। छोटे से बेबी को आप गोद में उठा के देखिए, वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका अपने हेड पे कंट्रोल ही नहीं होता, उसका हेड गिर रहा होता है बार बार। फिर हम उसके हेड के नीचे अपना हाथ रखते हैं, है ना, और उसके बैक को भी सपोर्ट देते हैं। धीरे धीरे वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। जैसे जैसे हेड के ऊपर कंट्रोल आता है, फिर उसके बाद अदर ऑर्गन्स के ऊपर, अदर पार्ट्स के ऊपर वो सीखता जाता है, उसकी डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेफलोकॉडल प्रिंसिपल, फ्रॉम हेड टू फुट। सेकेंड है इसका प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, डेवलपमेंटल डायरेक्शन का ही पार्ट है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अवर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। मतलब पहले सेंट्रल पार्ट डेवलप होता है, देन पेरिफेरी की बात आती है। तो एग्जाम्पल क्या है, हमारी पहले स्पाइनल कोड डेवलप होती है, इट टेक्स प्लेस बिफोर दोज ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड फिंगर्स। इनफैंट जो है फर्स्टली डेवलप कंट्रोल्स ओवर आर्म्स बिफोर हैंड्स एंड फिंगर्स। सबसे पहले हमारा अपनी हैंड्स के ऊपर, अपनी आर्म्स के ऊपर, सॉरी नोट हैंड्स, हमारे आर्म्स के ऊपर कंट्रोल आता है, और लेटर स्टेजेस पे जाके हमारा कंट्रोल जो है हैंड्स और फिंगर्स पे आता है। इन द बिगिनिंग चाइल्ड एग्जिबिट इट्स कंट्रोल ओवर द लार्ज फंडामेंटल मसल्स। लेटर ऑन जो स्मॉलर मसल्स डेवलप होते हैं, पहले लार्जर मसल्स डेवलप होते हैं, फिर स्मॉलर मसल डेवलप होते हैं। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, मीन्स सेंटर टू पेरिफेरी। पहले स्पाइनल कोड डेवलप होगी, उसके बाद बाकी वाले पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे की, वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। एक पैटर्न है इसका जिसको फॉलो करते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सेज जो हैं टाइम के साथ साथ स्पेसिफिक होते जाते हैं, पहले जनरल ही होते हैं। पहले जैसे अभी मैंने बताया फुल बॉडी मूवमेंट होती है, लेटर चाइल्ड लर्न स्पेसिफिक मूवमेंट। यहाँ पे मैं और एग्जांपल देना चाहूँगी कि न्यू बॉर्न बेबी, जब आपने उसको रोते हुए देखा होगा, वेन एवर द चाइल्ड क्राइज हिज होल बॉडी इन्वॉल्व्स, है ना, पूरी बॉडी जब रो रहा है, उसका फेस भी तना हुआ है, रेड हुआ हुआ है, पूरी बॉडी रो रही है। कहने का रोने का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी इन्वॉल्व हुई हुई उसके अंदर। लेटर ऑन जो है सिर्फ आई से आंसू निकलते हैं, या उसकी वो लिप्स बने होते हैं, या फिर वोकल कॉर्ड से इन्वॉल्व होते हैं। पहले जो है पूरी बॉडी के साथ वो अपने पूरे शरीर को इकट्ठा करता है जब न्यू बॉर्न बेबी है, जब रो रहा होता है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है, बेबी वेव्स आर्म्स बिफोर लर्निंग टू ग्रास्प। ग्रास्प कुछ करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए से पहले वेव करना सीखता है वो आर्म्स को अपनी।
नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होती, सिंगल लाइन में मैं बात करूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे नहीं होती। इट ऑलवेज फॉलोज लाइक अ स्पाइरल। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया है। डेवलपमेंट समटाइम्स स्लोज डाउन एट सम स्पेसिफिक स्टेज और मे इवन मूव बैकवर्ड टू कंसोलिडेट इट। एक बैकवर्ड क्यों आती है, एक किस तरह से स्पाइरल है, मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। आपने स्प्रिंग देखे होंगे पेन के अंदर, है ना, कोक स्क्रू देखे होंगे। ऐसे ही हमारी डेवलपमेंट है, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। एरो से देखिए, वी केम बैक, वी मूव्स बैक। क्यों बैक आते हैं? कंसोलिडेशन के लिए बैक आते हैं। देखो, बच्चे ने कुछ एक चीज़ नई सीखी, थोड़ी देर बाद, अगले दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद वो भूल जाता है ना। भूलने के बाद उसको वो लर्निंग जो की होती है वो भूल जाती है और फॉरगेटिंग हो जाती है। फिर कुछ नया और सीख लेता है। तो वो क्या है, ये इसी स्पाइरल अरेंजमेंट को ही दिखा रहा है। एक पैटर्न है, हमारी जो डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हमारी जो डेवलपमेंट है कभी जनरल टू स्पेसिफिक होती है, कभी स्पेसिफिक टू जनरल होती है। हम चेंज करते रहते हैं, कभी हम जनरल चीज़ें पहले सीखते हैं, कभी स्पेसिफिक पहले सीखते हैं, कभी होल टू पार्ट, कभी होल से सीखते हैं, कभी पार्ट से सीखते हैं, कभी पार्ट से पहले सीख लेते हैं, उसके बाद होल से सीखते हैं। तो जब इनको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल ऑफ कोग्निटिव इंटीग्रेशन। अ चाइल्ड डिफरेंशिएट between more and less, then learns a specific concept of number 1, 2, 3, and finally integrates this to understand addition, subtraction. देखिए, हम कोग्निटिव इंटीग्रेशन की कैसे एग्जांपल दी है। पहले काउंटिंग सिखाई जाती है बच्चे को किंडरगार्टन में, 1, 2, 3, 4, है ना। उस सीखने के बाद कैसे वो उसकी जैसे जैसे कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, कोग्निशन डेवलपमेंट होती है। तो क्या हो रहा है, उसको सम्स आने शुरू हो जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख जाता है वो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी है सोशियो इमोशनल इंटीग्रेशन की। एन इन्फेंट इनिशियली स्माइल्स एट ऑल फेसेस, देन लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मदर फेस and others, and eventually integrates the mother face, voice, touch and smell as belonging to the one person. पहले सिर्फ वो मदर को अपनी स्मेल से पहचानता है, धीरे धीरे मदर के फेस को पहचानना शुरू कर देता है, उसके बाद मदर की वॉइस, उसके टच को ना समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरी मदर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। डेवलपमेंट जो है हमारी वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे है, चाहे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, सोशल हो रही है, इमोशनल हो रही है, मोरल हो रही है, लैंग्वेज हो रही है या सोशल है, ऑल डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। अकेडमिकली टैलेंटेड चिल्ड्रन जो हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, यू मस्ट हैव सीन दे आर बेटर इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि ये ऐसे ही होता है कि इंटर रिलेशन है, हमारी हर तरह की डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वॉट चिल्ड्रन विल डू एट अ गिवन स्टेज, कि अब 4 साल की एज में क्या करेगा, 5 साल की एज में क्या होगा, उसकी अल्टीमेट हाइट क्या होगी, ये प्रिडिक्टेबल हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल से मैंने लिखा, एक्सरेज जो हैं, एक्सरे की टेक्निक है, उसको स्टडी करके डॉक्टर्स उस बोन्स का, रिस्ट का स्टडी करते हैं जब एक्सरे, तो बता सकते हैं कि उस बच्चे की अल्टीमेट क्या हाइट होगी, क्या साइज़ होगा उसका। सिमिलरली नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ ए चाइल्ड विल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग हिज अल्टीमेट मेंटल डेवलपमेंट, कि आगे वो मेंटल डेवलपमेंट उसकी कैसे होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कहते हैं कि ईच चाइल्ड जो है अपनी ही पेस के साथ ग्रो करता है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, ऑल आर डिफरेंट, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर डिफरेंट। तो हर एक बच्चे की अपनी पेस है, अपनी ही एक स्पीड है, और वो स्पीड कैसे है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, बाय इन्वायरमेंट, बाय न्यूट्रिशन। टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड, हमें क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज वी पीपल आर टीचर्स एंड वी शुड नो अबाउट इट्स साइकोलॉजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों 2 आइडेंटिकल ट्विन्स सेम नहीं हैं, क्यों हर बच्चे की स्पीड अलग से है सीखने की, लर्निंग की, अपनी पेस क्यों है। तो
ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें। तो इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज हम टीचर्स को ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों चीज़ों का असर आता है, चाहे वो हेरिडिटी है चाहे वो इन्वायरमेंट है। मीन्स हमारे फिजिकल ट्रेट्स कैसे हैं, हमारे मेंटल ट्रेट्स कैसे हैं, हमें पेरेंट्स कैसे मिले हैं, किस तरह के जीन्स मिले हैं, अकॉर्डिंगली हमें न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, इलनेस तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं हो गए, वैसे ही हम बनते जाते हैं। सो अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। अर्ली स्टेजेस पे गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर होती हैं, लेकिन लेटर ऑन प्री एडोलेसेंस में बात करें गर्ल्स मैच्योर होती हैं, जल्दी टॉलर होती हैं, हैवियर हो जाती हैं बॉयज़ से, बट लेटर ऑन बॉयज़ जो हैं वो उनको सरपास कर जाते हैं। तो लेकिन मेल और फीमेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग अलग से स्टडी करना ज़रूरी है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट इज कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब क्या है? टू एड अप। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन विद अर्लियर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। हर स्टेज पिछली वाली स्टेज से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड लर्निंग टू वॉक रिक्वायर्स द अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ क्रॉलिंग एंड देन स्टैंडिंग. For example, in the process of language development of a child, firstly child cries, then he learns to speak mama, that is meaningless sound, papa, meaningless sound. धीरे धीरे मामा पापा से क्या बन गया? मम्मा पापा. Later on he learns word and then he able to speak complete sentence. Development is both quantitative and qualitative. क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। हमने बात करी थी ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव है। जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम इसमें क्वांटिटेटिव तो ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि हमारे हैंड्स का साइज़ भी बड़ा हुआ है और साइज़ के साथ साथ उनके काम करने की एफिशिएंसी भी बड़ी है। मीन्स हैंड्स नॉट ओनली ग्रो, दे आल्सो डेवलप, है ना। वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, हमारी मेमोरी में चेंज आई है। नाउ वी कैन रीज़न, वी कैन थिंक क्रिएटिवली, हमारी इमेजिनेशन डेवलप हुई है। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ऑल्दो इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बट यूनिफॉर्म नहीं है। कभी तेज़ी से भी आएगी, कभी स्लो भी होगी। फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में नॉट बी यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अर्ली टॉकर्स वर्सेस अर्ली वॉकर्स. कोई जल्दी बात करनी शुरू कर देते हैं, कोई जल्दी चलना शुरू कर देंगे। हर एक की अपना अपना स्टाइल है, यूनिफॉर्म नहीं है, सब में सेम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट ग्रो रैपिडली इन द फर्स्ट ईयर बट दिस ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यूरिंग चाइल्डहुड. इन्फेंसी में बहुत फास्ट है, फर्स्ट 5 ईयर्स मैंने आपको बताए कि बहुत फास्ट है, बट लेटर ऑन ग्रोथ जो है चाइल्डहुड में स्लो डाउन हो जाती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट. अर्ली डेवलपमेंट हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. अर्ली डेवलपमेंट में हमने कैसे बच्चे को इन्वायरमेंट दिया, न्यूट्रिशन कैसे दी, उसका इमोशनल, घर पे इसका इमोशनल एटमॉस्फेयर कैसा था, सोशल डेवलपमेंट कैसी थी, कल्चरल डेवलपमेंट कैसी थी, क्या हम बच्चों को वार्म लव दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. अगर अर्ली स्टेजेस पे ये फास्ट अच्छी देंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी. अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो हम इन प्रिंसिपल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज वी पीपल आर टीचर्स एंड अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल्स इट हेल्प्स सपोर्ट हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट. वी ऑल आर कंसर्न अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना. हमें इट कैन प्रमोट अप्रोप्रिएट केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट. अब अगर हम बात करें पी टेट में, टी टेट में आपको किस तरह के सी टेट में क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? द सेफलोपोडल प्रिंसिपल्स टू डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम. ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इसमें लेना है. मैंने आपको पढ़ाया था सेफलोपोडल प्रिंसिपल का. तो जनरल टू स्पेसिफिक है, या डिफ्रेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड है, या थर्ड ऑप्शन है हेड टू टो है, फोर्थ ऑप्शन है रूरल टू अर्बन एरियाज. तो सी ऑप्शन इज हेड टू टो. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, for proper development, for proper education, or all of the above. Very clear, all of the above.
डायरेक्शन भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नंबर 3, ऑल डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये सारी डेवलपमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, किसने कहा ये? हु सेड दिस? गैरिसन ने कहा, लिबर्टी ने कहा, या पेल्स ने कहा, या गैसल ने? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, दैट इज गैरिसन। Question number 4 is a teacher's effectiveness in teaching can be judged when it, option A, brings good results, raises the IQ of the learner, or stimulate the learner's thinking, or none of the above. टीचर्स की टीचिंग में इफ़ेक्टिवनेस को कैसे जज कर सकते हैं कि ये टीचर बड़ा अच्छा से पढ़ा रहा है, टीचिंग बहुत अच्छी है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्टिमुलेट्स द लर्नर थिंकिंग। जो बच्चे को, जो लर्नर की थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, एनर्जाइज करता है, वही टीचर इफेक्टिव है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? चेंजेस कहते हैं, जीन्स कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, या माइंड कंडीशंस कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन के अंदर जीन्स के थ्रू आ रही हैं, ट्रेट्स आ रही हैं, क्वालिटीज़ आ रही हैं, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।